We will start with a word of prayer. Loving, gracious Heavenly Father, अनुग्रहकारी प्रिय परमेश्वर, thank you, Jesus, for your presence in our midst. प्रभु यीशु मसीह, आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। We humble ourselves to the utmost before you, Lord Jesus. और हम अपने आप को पूर्ण रूप से आपके सम्मुख नम्र करते हैं। Cleanse our hearts with your blood और अपने लहू के द्वारा हमें शुद्ध कीजिए and flood our hearts with your Holy Spirit और अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें परिपूर्ण कीजिए and help us to understand whatever we are और discussing from you, Lord Jesus. और जो हम सीखते हैं उसे समझने के लिए, आप जो हमें सिखाना चाहते हैं उसे समझने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। And we need your wisdom and your knowledge, Lord Jesus, और हमें प्रभु यीशु मसीह आपका ज्ञान और आपकी बुद्धि हमें चाहिए, so that we can be a greater blessing to others, understanding all these things in our spirit realm. ताकि हम हमारे आत्मिक जीवन में दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बन सके। Your name alone be glorified. In Jesus' precious sweetest name we pray. सिर्फ आपके नाम को महिमा मिले, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए पिता। आमीन। Amen. Amen. So last week we were seeing how through changing our behavior pattern we can manage stress in our life. हम पिछले दिनों में देख रहे थे कि कैसे हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाकर हम जो स्ट्रेस है, हमारे जो तकलीफ है, हम उसको कम कर सकते हैं। In the initial many weeks, we were seeing how by changing or renewing our thought pattern through the renewing of the Holy Spirit, we can have change in our emotions. और हम देख सकते हैं कि हमारा जो सोच विचार है वो हमारे भाव में एक अंतर लेकर आता है। Yeah, in the initial weeks of our study series, we were seeing how when we surrender everything to the Lord fills us with the Holy Spirit and helps us to change our pattern of thinking. और जब हम शुरुआती क्लास में हम इस प्रकार देख रहे थे कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा से भर देता है और हमारे अंदर उसकी उपस्थिति हमारे व्यवहार को, हमारे सोच को बदल देती है। And when our thought pattern is changed in accordance with the word of God, our emotions also will change. और जब हमारा जो सोच विचार है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार हो जाता है, तो हमारा भाव भी उसके अनुसार बदल जाता है। And we were seeing some 8 phrases starting with the letter C, how we can change, how the Holy Spirit can help us to change our thought pattern uh, in accordance with the word of God. और हम 8 बातों को हमने देखा, 8 वाक्यों को हमने देखा जो सी शब्द से शुरू होते हैं, जो हमें हमारे स्वभाव और पवित्र आत्मा के हमारे उपस्थिति के द्वारा हमारे स्वभाव में जो परिवर्तन आते हैं उसको बताता है। Hope you are able to uh, apply all those things in your practical day-to-day life. और मैं आशा करता हूं आपने जो सीखा है वो आप अपने व्यक्तिगत जीवन में लागू कर पा रहे हैं। For example, if something, actually, if somebody suddenly gets irritated with us, we can, the Holy Spirit can help us to think that nothing has happened without the Lord knowing and permitting that. The third C we were seeing, sovereign control by the Lord, His knowledge and permission. मान लीजिए जब हमसे कोई चिढ़ जाता है तो हमें पवित्र आत्मा ये याद दिलाता है कि परमेश्वर के सर्व ज्ञान के बिना कुछ भी इस दुनिया में संभव नहीं होता। तो परमेश्वर नियंत्रण में है, ये पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। And whatever irritation, whatever negative feelings that comes to our mind, we can cast all those burdens unto the Lord, the first C. और उस चिढ़ जो है उसके विपरीत जो भी बुरी बातें हमारे मन में आती है, जो बुरा करने का हम सोचते हैं, वो सब कुछ हम परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर देते हैं ताकि वो हमें चलाए। And we can count our blessings, whatever the Lord has done good things in our lives. Some negative events, of course, the Lord has allowed to make me a better person, to make me more Christ-like. और उन नकारात्मक बातों को छोड़कर हम परमेश्वर के आशीष को गिनना शुरू करें जो परमेश्वर ने हमें दिया है, ताकि हम उन बुरे बातों के बारे में ना सोचकर परमेश्वर के कार्य के बारे में सोचें।
And the second point, count your blessings, counting our blessings when negative events happen in our lives. और दूसरा जो बात है वो है परमेश्वर, जब हम उस नकारात्मक बातों का सामना करते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम परमेश्वर के आशीषों को गिने और उसको जाने. And consider from a long-term perspective. That means 5 years from now, does it matter how this person behaved to me? और हम ये सोचे कि आज से 5 साल के बाद क्या ये कोई मायने रखेगा कि इस व्यक्ति ने आज मेरे से कैसे बात किया. Even actually that irritation would be for that moment. After some time, we know that, that kind of replying back or taking revenge is not needed. After some time we'll understand. So trying to learn everything from a higher long-term heavenly perspective. तो जब कोई आपसे चिढ़ता है तो आपको उस समय दुख होगा या बदला लेने का इच्छा होगा, लेकिन जब आप आगे के बारे में सोचेंगे, भविष्य के बारे में सोचेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि यार बदला लेने से कोई फायदा नहीं है, या चिढ़ने से या कुछ उसको जवाब देने से कोई फायदा नहीं है. And consider the lesser fortunate those people who are undergoing much greater traumatic events in their life than the trivial events in our life. और जब हम ऐसे समय में दूसरों के बारे में सोचे जो हमसे ज्यादा कहीं अधिक मानसिक तकलीफ का सामना करते हैं अपने जीवन में, हमें शायद उनके बारे में सोचना चाहिए. And this we were seeing, this is the consider the lesser fortunate and crushed to comfort. That means whatever experience that I'm undergoing now is to help me to be broken in my confidence, so that I will be dependent on the Lord all the more, and I'll be strengthened by the Lord to comfort many other people in future. और क्रश टू कंफर्ट आप आपके स्क्रीन पर देख रहे होंगे, उसका मतलब ये है कि हमारे तनाव में हमें विश्राम करना या आराम से रहना, क्योंकि हमें ये जानना है कि परमेश्वर के इच्छा अनुसार जो तकलीफ मेरे जीवन में आई है, जो मुझे कुचला जा रहा है, कल वही बहुत तायत से लोगों के लिए एक आशीष का कारण होगा. And the seventh one, conformed to his likeness. That means whatever is happening, so that through all those things, the Lord can mold me to make me more like Christ through all these experiences. और उस तनाव में इस बात को जान लेना कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो मुझे परमेश्वर के स्वरूप में, प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बदलने के लिए. And the last phrase, closer in fellowship. Everything is so that I'll be clinging on to the Lord, closer in fellowship with Him all the more. और ये जानना कि ये सब मेरे जीवन में इसलिए है क्योंकि और ज्यादा मैं प्रभु यीशु मसीह के संगति में बनते जाऊं और ज्यादा उसके ऊपर निर्भर होता जाऊं. Only if we apply all these things in our life, then only we'll be able to counsel other people and help them to apply these things so that they can overcome their anxiety and anger and jealousy and unforgiveness and stress and all. और जब हम इन बातों को अपने मन में लागू कर पाएंगे, तभी हम दूसरों को समझा पाएंगे. जब दूसरे लोग आपके चारों तरफ क्रोध करते हैं, असहिष्णु है, या दूसरों से नफरत करते हैं या क्षमा नहीं करते, ऐसे लोगों को अगर हमें समझाना है तो पहले हमें इन बातों को अपने जीवन में लागू करना है. So like that, changing our thought pattern will help us to have positive and more positive emotions. और ऐसे हमारा जो विचार है उसको बदलना एक सकारात्मक भाव को हमारे अंदर पैदा करता है. And last week we were seeing how changing our behavior as God wants us to change will help us to renew our thought pattern as well as renew our emotions also. और पिछले हफ्ते हमने देखा कि हमारे स्वभाव को प्रभु के इच्छा के अनुसार बदलना, वो हमारे जो विचार है उसको नया करेगा और हमारे भाव को भी नया करेगा. And we were seeing when all these stressful things are happening, we can identify the causes of stress, the first point here. और जब हमारे जीवन में तनाव आता है
तब हमने उस बातों को देखा कि उसका कारण क्या क्या होता है, उस तब हमें क्या करना चाहिए उसके विषय में हमने देखा। And for good behaviors, for excellent behaviors in accordance with the word of God, the point B. और तनाव के विषय में हम अगर हमारे स्वभाव को हमने बदलना है उसके विषय में जो दूसरा पॉइंट है वो यहाँ पर लिखा है. It means surrendering ourselves to read the word of God, meditate the word of God. और उस तनाव का सामना करने के लिए हमें परमेश्वर का वचन को अध्ययन करना है. And spending time in quality prayer with the Lord, seeking to hear what the Lord tells us. और प्रार्थना में हमारा समय व्यतीत करना है. और And जो परमेश्वर हमसे कहना चाहता है उसे सुनना है. And fellowshipping with the Lord Jesus and with like-minded fellow brothers and sisters. और एक मन के लोगों के साथ सहभागिता, और उसके साथ साथ प्रभु के साथ भी हमें सहभागिता रखना है. And witnessing about the Lord, witnessing what the Lord has done. That means telling others how the Lord saved us, what all the Lord helped us, and being a bold witness of the Lord. All these things will make us stronger. और जो हमने महसूस किया है या जो हमारा कार्य है उसका गवाही हमें देना है कि कैसे परमेश्वर ने उस तनाव के बीच में हमें चलाया ताकि वो और दूसरे लोगों को भी उत्साहित कर सके. Last week, the last point that we were beginning to look as taking a break. और आखिरी बात जो हम देख रहे थे एक विराम लेना. And we were just going to see that verse from Mark 6:31. और हम उसी बात को समझने के लिए मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 31वें पद को हम पढ़ेंगे. मरकुस रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 31वां पद. There Jesus is telling the disciples, वहां प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं, come away by yourself to a secluded place and rest a while. और वहां पर वो मार्क 6:31. मरकुस रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 31वां पद. देखिए वहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं, उसने उनसे कहा तुम आप अलग किसी जंगली स्थान में आकर थोड़ा विश्राम करो. So even in the midst of busy schedule, Lord knows that we are human beings. So to manage stress, we all need a break. और इतने जो बहुत ज्यादा कार्य के बीच में भी परमेश्वर जानता है कि हम इंसान हैं, थक सकते हैं, इसलिए प्रभु अपने चेलों से बोलता है तुम एक विराम ले लो, एक छोटा विश्राम का समय अपने लिए अलग कर. Some people would be stressed out with their workload. और कुछ लोग बहुत ज्यादा तनाव में आ जाते हैं उनके बहुत ज्यादा काम करने के द्वारा. Some people would be burdened about the excessive study burden, study load, so many exams. और कुछ लोग तनाव में आ जाते हैं कि उन्हें बहुत इस बात को सोचकर कि उन्हें बहुत सारा पढ़ना है, परीक्षाएं आ रही है. So like that, we all need a break. Of course, we need to work hard, but we all need a break. और ऐसे हम सबको एक विराम की जरूरत है. हमें मेहनत करना है लेकिन हमें एक विराम की बहुत ज्यादा जरूरत है. And even for students who are studying, we advise that if you study for some 45 to 50 minutes, at least some 5-10 minutes, you can take a break and then restart studying. और जो विद्यार्थी लोग हैं, बच्चे हैं, उनसे भी हम बोलते हैं अगर आप 40-45 मिनट पढ़ रहे हैं उसके बाद आप 5 मिनट का या 10 मिनट का विराम ले सकते हैं. Then actually when you start afresh after the break, your concentration and attention would be much more than if you had continued studying. The graph would be going down, the attention concentration graph. और अगर आप निरंतर पढ़ते रहेंगे, पढ़ते ही जाएंगे, तो आपका जो ध्यान है पढ़ने में, जो लगा हुआ जो ध्यान है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा. लेकिन अगर आप पढ़ने के बाद बीच में एक विराम लेकर फिर से नए तरीके से जब आप पढ़ेंगे तो आप उस बात को फिर से पूरे ध्यान पूर्वक पढ़ सकते हैं. But for some people who are very lazy people, we like to remind them it is not 10 minutes of studying and 50 minutes of break, but rather 50 minutes of studying and 10 minutes of break. और जो आलसी है उनको समझाना पड़ता है कि विराम का मतलब ये नहीं है कि 10 मिनट पढ़ो और फिर 50 मिनट आप आराम करो, बल्कि आपको 50 मिनट पढ़कर 10 मिनट आप आराम कर सकते हैं. So we all need a break.
इसलिए हमें सबको एक विराम की जरूरत है. And even the Bible begins with saying, if you turn to Genesis chapter 1, verse 5. अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 1 अध्याय को जब हम निकालते हैं, there we read the latter part of that verse. There was evening and there was morning one day. और उसका 5वें पद में इस प्रकार लिखा है, उत्पत्ति 1 का 5 में उसके आखिरी भाग में इस प्रकार लिखा है, तथा सांझ हुई और भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया. Actually, we say morning and evening, but God's order is that evening and then morning. और हम सुबह और शाम कहते हैं हमारी भाषा में, लेकिन परमेश्वर का बोलने का तरीका देखिए. परमेश्वर कहता है सांझ हुई फिर भोर हुआ. Even Jewish people, for them, the day starts with 6 p.m. in the evening. और यहूदी लोगों के लिए जो दिन था वो शाम के 6 बजे से शुरू होता था. And the spiritual lesson from that is there. That is resting with the Lord, fellowshipping with the Lord, and from that fellowship and rest and that mustered energy, we are going out for work. और उससे हम आत्मिक बात ये सीख सकते हैं कि हमें प्रभु में जो विराम है या विश्राम है वो लेना है, ताकि हम एक नए तरीके से, एक नए जोश के साथ उस काम को फिर से शुरू कर सके. Even in the human body, if you study physiology and all, even in a cell, even in a human cell, there is resting membrane potential and action potential. और अगर आप विज्ञान को पढ़ेंगे, मनुष्य के शरीर के बारे में पढ़ेंगे, मनोविज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, तब वो हमें ये सिखाता है कि मनुष्य की जो कोशिका है उनके अंदर 2 प्रकार का कार्य होता है. एक की है वो एकदम से जागरूक होकर काम करने लग जाते हैं, और उनमें ये ताकत भी है कि वो अपने आप विश्राम कर ले. And even if you listen to your heartbeat, left up, left up, left up. If you place a hand over the chest. और अगर आप अपने छाती पर हाथ रखें तो आप अपने दिल के धड़कन को महसूस कर सकते हैं, धक 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 करके. That even in a heartbeat, there is relaxation of the heart muscles and contraction of the heart muscles. और ये धक धक वो एक ही आवाज नहीं है, वहां पर क्या होता है, वो आवाज ऐसे रुक रुक के इसलिए आती है क्योंकि वो पहले सिकुड़ जाता है, फिर वो खुलता है, और ऐसे वो कम ज्यादा होकर अपना काम को करता है. Yeah, for that the medical people call that diastole and systole. और जो मेडिकल लोग हैं वो उसको डायस्टली और सिस्टली बोलते हैं. So even in the nature, even in a human body, God has set a rhythm. There is rest, work, rest. और आप इस प्रकृति में भी और तरीकों में भी परमेश्वर ने एक तरीका इसमें तय किया है. वहां कार्य भी है और विराम भी है, विश्राम भी है. Even Jesus, we read many a time that he was asleep in the boat, sleeping on a cushion. और हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी पढ़ते हैं कि उसने कई बार विश्राम लिया. हम देखते हैं कि वो नाव पर सोया या वो किसी जगह पर वो सोया या थक गया. Mark 4:38, Jesus himself was in the stern, asleep on the cushion, and they woke. और मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 का 38 पद में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वहां पर एक तकिए का सहारा लेकर सो गया. In the Psalms, we read that God does not slumber or sleep, but Jesus, when he came as a man, he had to sleep. और हम भजन संहिता में देखते हैं हमारा परमेश्वर ना सोने वाला है ना ऊँगने वाला है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब वो अपने मानुषिक देह में जब वो आया तब उसे सोना ही था. We need 7 to 8 hours of sleep in a day is what the science says. और विज्ञान बताता है कि हमें 7 से लेकर 8 घंटे का विश्राम एक दिन में हमारा होना जरूरी है, नींद होना जरूरी है. Yeah, in this PowerPoint you can see sleep 8 hours, and I've written cytokines. और वहां पर यहाँ देखिए लिखा है स्लीप 8 आवर्स, उसके बाद लिखा है साइटोकाइन्स, मतलब स्लीप मतलब नींद 8 घंटे का. Cytokines are some neurochemicals in our body which whose regulation would be optimum only if we sleep for adequate duration. और साइटोकाइन्स का मतलब ये है
कि कुछ ऐसे तत्व हैं हमारे शरीर में, वो पूरे तरह से काम तभी करते हैं जब हम विश्राम करते हैं। And the cytokine regulation will help us to improve our immunity and all. और ये जो साइटोकाइन है वो हमारे शरीर की सहायता करती है उसका जो रोग से प्रतिरोध करने के लिए। That's why during the COVID time, doctors were encouraging the patients sleep for at least 8 or 9 hours a day. इसलिए कोविड के समय में डॉक्टर्स सब जो रोगी हैं उनसे कह रहे थे कम से कम 8 से 9 घंटे आप सोइएगा। And itself will improve our immunity and help us to recover faster. और वो आपका रोग प्रतिरोध को वो मजबूत बनाएगी और आप जल्दी ठीक हो सकते हैं, जल्दी बेहतर हो सकते हैं। But when we are not sick and all, at least some 7 to 8 hours of sleep is good. और अगर आप बीमार नहीं है तो 7 से 8 घंटे का नींद बहुत अच्छा है। And ideally, the optimum time they say 10 p.m. to 6 a.m. और सोने के लिए जो सही समय माना जाता है वो 10 बजे से लेकर 6 बजे तक का है। And even if it's little bit this way or that way, I mean, approximately that time would be good. और वो थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो भी चलेगा, लेकिन उतना समय अगर हम दें तो बढ़िया है। And so that is taking a break. और वो था एक विराम लेने के विषय में। And sometimes actually, even we read Jesus praying all night in Luke 6. और कई बार हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह रात भर वो प्रार्थना कर रहा था, लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय में। And even the Mark 6:31 we saw that in that, if you read that portion, although they wanted to rest a while, they couldn't rest because all the people came after them, and that was the time when Jesus fed the 5,000, more than 5,000 people. और हम मरकुस 6 का 31 में देखते हैं जो कि वो लोग विश्राम करना चाहते थे, तब भी चेले विश्राम नहीं कर पाए क्योंकि लोग उनके पास आ गए और प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर 5,000 लोगों को खाना खिलाया। In exceptional situations when the Lord leads us and guides us, sometimes we may even lose sleep or food and all for the sake of blessing others. कई बार जब परमेश्वर हमसे कार्य कराना चाहता है या कुछ परिस्थितियों में हमें ऐसा भी हो सकता है कि हम सो नहीं पाए ताकि उसका लाभ दूसरों को हो सके। But usually, of course, the Lord wants us to take good rest and take care of our body because our body is the temple of the Holy Spirit. 1 Corinthians 6:19, we read that. लेकिन साधारण तौर पर परमेश्वर चाहता है कि हम रुकें, विराम ले, विश्राम करें और अपने शरीर को हम संभाले, क्योंकि हम वचन में पढ़ते हैं हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। And nobody has hated his body. We read in Ephesians chapter 5. और इफिसियों 5 का 5 अध्याय में हम इस प्रकार देखते हैं कि कोई अपने देह से नफरत नहीं करता। Verse 29, no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as Christ also does the church. और प्रेरितों के काम उसका 5वें अध्याय में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि कोई भी अपने शरीर से बैर नहीं रखता, वरन उसका 29वें पद में उसका पालन पोषण करता है जैसे मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। And the fourth point, D point here, point D is acknowledging our limitations. और जो आखिरी पॉइंट है, चौथा पॉइंट जो यहाँ पर लिखा है वो ये है अपने कमियों को या अपने कमियों को स्वीकार करना या उसको पहचानना। So we are seeing how we can manage stress. और हम देख रहे हैं कि कैसे हम तनाव का सामना कर सकते हैं या उसको कैसे हम समझ सकते हैं। By changing our behaviors. और हमारे स्वभाव में परिवर्तन लाके। So some people are so perfectionistic that they want to do all the work by themselves. कुछ लोग ऐसे सिद्ध होते हैं जो वो लोग चाहते हैं कि हम लोग सब काम हम अपने आप करें। And at the end of the day, they will be burnt out and they won't be able to do it. They will, it will be like coming to a breakdown after some time. और जो लोग ऐसा करते हैं वो अंत में उनके साथ क्या होता है, वो मतलब इतने तनाव में आ जाते हैं कि या तो वो टूट जाते हैं या अपने शरीर को कोई हानि पहुंचा देते हैं।
Even in the Bible, we read that we are just one member in the whole body of Christ. और बाइबल में भी हम इस प्रकार पढ़ते हैं, हम उस पूरे देह का एक अंग मात्र हैं। 1 Corinthians 12, we read that beautiful example of church being the body of Christ, Christ being the head. और पहला कुरिन्थियों 12 में हम उस भाग को पढ़ते हैं। पौलुस एक बहुत सुंदर उदाहरण हमें देता है कि प्रभु यीशु मसीह वो सिर है और हम उसका देह हैं, हम कलीसिया उसका देह है। And we can be a small toe or a small nail in the body, and we have our part, but we are not the whole body that I need to do everything. No. और हमें ये समझना चाहिए कि उस पूरे देह का हम एक भाग है, शायद एक छोटी सी उंगली हो या एक नाखून मात्र हो, हमारा उपयोग उस देह में है, लेकिन हमें ये जानना है कि हम पूरा देह नहीं है, हम उस देह का एक अंग मात्र है। We need one another in the body of Christ. और हमें एक दूसरे की जरूरत है उस पूरे देह में। And even in a secular, not only in the ministry, even in secular work and office and all, we need one another's help. और सिर्फ सेवकाई में नहीं, बल्कि हमारे सांसारिक जीवन में भी हमें एक दूसरे की सहायता की जरूरत है। The joint efforts, that is what we read here. Joint efforts, not a single person's effort, but help from other people also. और यहाँ पर देखिए इंग्लिश में लाल अक्षर में लिखा है जॉइंट एफर्ट। उसका मतलब है कि सिर्फ एक आदमी ही सारे काम को नहीं करे, बल्कि हम लोग सब मिलकर हाथ बटाएं और उस काम को पूरा करें। एक साथ मिलकर काम करने को जॉइंट एफर्ट कहते हैं। And delegate tasks as possible. और उस काम को जो हम करने जा रहे हैं उसको भाग कर लेना या उसको बांट देना, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। Yeah, so we can see who are capable in doing that particular job, so we can entrust those people and get the work done quickly, more efficiently. ताकि हम ये जान सके कि वो जो काम है वो कौन बेहतर तरीके से कर सकता है और उसको वो काम दे दे, ताकि वो काम बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। And we can lessen our stress and burden. और उसका एक और गुण ये है कि हमारा जो तनाव है उसको भी हम कम कर सकते हैं। And the point E, the fifth point here is hobbies. और उसका पांचवा जो पॉइंट है वो है हमारा जो आदत है, हॉबीज है जो हमें करना पसंद है। Yeah, so that means actually whatever we enjoy doing, that is our hobby. हॉबीज का मतलब होता है शौक। हमारे शौक क्या क्या है, क्या क्या हम करना पसंद करते हैं। So apart, of course, we need to spend much time for our studies, for our work. और हम हमारे काम के लिए, हमारे पढ़ाई के लिए हम समय अलग करते हैं। And even in the midst of the studies or work, we can take short breaks in between. और हम उस पढ़ाई के बीच में और काम के बीच में छोटा सा विश्राम हम ले सकते हैं, छोटा विराम हम ले सकते हैं काम से। After finishing the studies or work for that day, there would be we should be able to find some free time for hobbies and other activities. और उस काम को करने के बाद, उस पढ़ाई को खत्म करने के बाद दिन में हम कुछ ऐसा समय अलग कर सकते हैं जहां हमें जो अच्छा लगता है, जो हमारा शौक है, उसको हम करें। Some people enjoy listening to music. Some people enjoy singing good music. और कुछ लोग क्या करते हैं, उनका शौक होता है अच्छे गानों को सुनना। कुछ लोगों का शौक होता है, उन्हें अच्छा लगता है कि गीतों को गाना। And as children of God, we should listen to those songs which can bring us closer to the Lord Jesus, not the all this worldly kind of music. और हमें ऐसे गीतों को सुनना है जो आत्मिक हो और जो प्रभु से हमें करीब लेके आए, या ऐसे गानों को नहीं सुनना जो संसारिक है। Yeah, and reading good books. और ऐसे किताबों को पढ़ना है जो अच्छे हैं। Spiritual books which will help us to understand the Lord more, know the Lord more closer. और आत्मिक किताबों को हम पढ़ सकते हैं ताकि हम प्रभु को और ज्यादा बेहतर तरीके से जान सके। And even some secular books which are clean and not what to say, which will not divert us from the Lord.
और ऐसे चीजों को हम ना करें या किताबों को ना पढ़ें जो हमें परमेश्वर के ज्ञान से भटका दे. So we need to be very selective in choosing what books, what articles we read. और इसलिए हमें सही चुनाव करना जरूरी है कि किस तरह की किताब को हम पढ़ रहे हैं, किस तरह के आर्टिकल्स को हम पढ़ रहे हैं. And then some people enjoy gardening, embroidery, drawing, painting, picnic. Like that, many hobbies can be there for each person. और कुछ लोग पेड़ पौधे उगाते हैं, कुछ लोग बगीचा उगाते हैं, कुछ लोग सिलाई का काम करना शौक रखते हैं, कुछ लोग चित्र बनाने का, कुछ लोग पेंटिंग या पिकनिक करने का शौक रखते हैं. So like that, some time for these hobbies all will help us to, all these are good behaviors that will help us to manage stress. और ये सारे अगर शौक को भी हम बीच बीच में करेंगे तो ये सब हमारी सहायता करेगा जो तनाव है उसको कम करने के लिए. And the point F is good friends, having good friends, good guide, good mentor. और छठे बात को यहाँ देखिए कि अगर हमें तनाव को कम करना है तो ये जरूरी है कि हम अच्छे दोस्त बनाएं, एक अच्छा साथी को चुने जो हमें मार्ग दिखाए या मार्गदर्शक को हम चुने. Yeah, when clients come to me for counseling and consultation, I many time I ask them, do you have good friends? और जब बहुत सारे लोग हमारे पास बातों को समझने के लिए आते हैं या जानने काउंसलिंग के लिए जब आते हैं, मैं उनसे इस प्रकार पूछता हूँ, क्या आपके अच्छे दोस्त हैं या नहीं. And I would encourage them to ventilate whatever in their mind to some people who can listen to them and understand them and help them, like their families or good friends. और मैं उन्हें उत्साहित करता हूं ऐसे दोस्तों को बनाने के लिए या ऐसे लोगों की संगति में रहने के लिए जो उन्हें समझा सके, उन्हें बता सके या सही परामर्श दे सके. And in your life, if you can have some really godly people who can mentor you, who can guide you, who can shepherd you in spiritual ways, it's a great asset. अगर आपके आत्मिक जीवन में आपके ऐसे दोस्त हैं और या आपके ऐसे साथी हैं या ऐसे मार्गदर्शक अगर आपके जीवन में है जो आपको सही रास्ता दिखा सके, आत्मिक रास्ता दिखा सके, तो ये एक बहुत बड़ी बात है. Whenever a problem comes, of course, we should run to the Lord Jesus first. और बात सही है कि जब समस्या आती है कि तो सबसे पहले हमें प्रभु के पास ही जाना चाहिए. Many times the Lord himself encourages us to be connected to our fellow brothers in the church, in the fellowship, so that we can be encouraged, mutually encouraged. और लेकिन हमें हमारे कलीसिया के भाई बहनों के साथ भी जुड़े रहना चाहिए ताकि हम एक दूसरे को सांत्वना दे सके. And in Proverbs we read that iron sharpens iron. और नीति वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, लोहा ही लोहे को धार देता है. Proverbs 27 verse 17. और वहां पर हम नीति वचन उसका 27 का 17 पद में हम उस बात को पढ़ते हैं. There we read iron sharpens iron, so one man sharpens another. और वहां पर लिखा है लोहा लोहे को धार देता है, वैसे ही एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को भी. So some simple example, I mean actually I was saying about fellowship and fellowship and friendship and all, we were saying the difference and all in the previous class. I do not want to repeat everything. और मैं सहभागिता और दोस्ती के बारे में पिछले क्लासों में मैं उसके विषय में मैं बात कर रहा था, तो उन बातों को मैं फिर से दोहराना नहीं चाहता. So a good mentor in our life would be so helpful that whenever we need some prayer, some guidance, some counseling, we can approach him, and that would be a blessing. और एक सही मार्गदर्शक, एक सही अगुवा हमारे जीवन में इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हमें प्रार्थना की जरूरत हो, जब हमें कुछ समझना हो या जब हमें कुछ मार्गदर्शन चाहिए हो, वो व्यक्ति हमारी सहायता कर सकता है. And submitting to godly authority will be a great protection for us from many spiritual snares and traps. और परमेश्वर के अधीन रहना वो हमारी सहायता कर सकता है बहुत सारे जाल से बचने के लिए. And the point G is keeping our minds engaged productively.
और आखिरी बात हम यहाँ पर अगला पॉइंट को हम यहाँ देखते हैं, हमारे जो दिमाग है, हमारा जो मन है, उसको जरूरी कामों में व्यस्त रखना। There is a proverb in English which says, idle mind is a devil's workshop. और एक इंग्लिश में एक कहावत है कि खाली मन, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। It is literally true, although it is not a verse from the Bible. Actually, it's a true saying. और ये बाइबल में लिखी गई बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक सच्ची बात है। And we read in Luke 11 that parable that Jesus says, where one demon goes out, and when he comes back, when he sees that person's heart from whom that demon had gone out is empty, he comes with 7 other demons, stronger than him. और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह मरकुस 11 में उस दृष्टांत को देखते हैं, जहां वो कहते हैं कि एक दुष्टात्मा वो एक व्यक्ति के मन से निकलकर जाती है और 7 और को बुलाकर लेके आती है ताकि वो खाली मनों को भर दे। That we read in Luke 11:24. और हम लूका रचित सुसमाचार, मरकुस में नहीं, लूका उसका 11 में हम उस बात को पढ़ते हैं। Verse 24, 25, 26, you can note it down. 24, 25 और 26 पद में। The same thing we read in Matthew 12:43-45. और मत्ती उसका 12 का 42 से 45 में भी हम वो बात को पढ़ते हैं। So keeping our minds idle, that means all the negative thoughts, anxious thought, impure thoughts, unnecessary thoughts, all can come in and barge into our mind. हमारे मन को खाली रखना मतलब बहुत सारा जो बुरा विचार है, बुरा काम करने का इच्छा है, वो सब कुछ हमारे मन में घुस सकता है। But as children of God, what we have to do is that we need to keep ourselves humble and surrender to the Lord Jesus, so that the Holy Spirit will be able to guide us to do something that the Lord wants us to do that time. लेकिन एक परमेश्वर के संतान होने के नाते हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने आप को नम्र करना है ताकि पवित्र आत्मा हमारे मन में अच्छे विचारों को दे सके और हमारे द्वारा कार्य कर सके। And here, even the Lord, we can, depending on the Lord, we can make a timetable for a day, for a week, for a month, like that. और जैसे परमेश्वर के ऊपर निर्भर कर हम क्या कर सकते हैं? हम एक दिनचर्या बना सकते हैं कि हमें एक दिन में क्या क्या करना है, उस बात को हम बना सकते हैं। एक दिन के लिए या एक सप्ताह के लिए हम उस बात को बना सकते हैं। Sometimes things will come, and the timetable we may not be able to follow exactly, but having a rough idea about how to spend time will help us to redeem the time, because the days are evil. शायद जो दिनचर्या आप बनाएं या जो टाइम टेबल आप बनाएं, उसको आप पूरी तरीके से शायद नहीं मान पाए, लेकिन हमें एक हिसाब उसका मिल जाता है कि हम कैसे अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये समय काफी कठिन है। And Ephesians 5:16 says, redeem the time, for the days are evil. और इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय में इस प्रकार लिखा है, 5 अध्याय उसका 16 पद में इस प्रकार लिखा है, वहां पर इस प्रकार लिखा है कि जो अवसर है वो बहुमूल्य समझकर उसको समझो, क्योंकि जो दिन है वो बुरे हैं। अवसर को हमें बहुमूल्य समझना है। Yeah, and if in the first century Paul is writing the days are evil, how much more evil are these days in 21st century? अगर पहले शताब्दी में पौलुस कह रहा है कि दिन बुरे हैं, तो आज 21वीं शताब्दी में दिन कितने बुरे होंगे, आप उसका अनुमान लगा सकते हैं। And the exact translation there in KJV and or KJV and KJV, it says redeem the time. That Greek word is exagorazo. The literal meaning is redeem by paying a price. और जो उसका मूल भाषा में जो वो बात लिखा गया है, वो है उस समय को मोल लेना। मतलब इस तरीके से लिखा गया है कि आपको कुछ चुका कर उस समय को मोल ले लेना है। So time is under the bondage of ourself, of the world and the devil. और पौलुस इस भाव को प्रकट करना चाहता है कि जो समय है वो हमारे जो शरीर है उसके अधीन में है, शैतान के अधीन में है, संसार के अधीन में है। And we need to
pay a price of our self-life, not my will, Lord. My will, that is the self. We need the price that we need to pay is that, Lord, not my will, but your will. So I pay the price of my self-life, my self-will, and I surrender to the Lord what my will is, and I allow the Holy Spirit to help me to, and Holy Spirit to guide me to do what He wants me to do with my time. और इसलिए हमें जो हमारा समय है वो परमेश्वर के सम्मुख रखना है, ताकि पवित्र आत्मा हमें अगुवाई कर सके कि हम हमारे समय का इस्तेमाल कैसे कर सके. And what price we need to pay for that is our और self. समय को अपना बनाने के लिए क्या मूल्य को हमें चुकाना है. Our will is to waste the time and spend idly and to spend time for many unnecessary things. हमारी इच्छा क्या है? हमारी इच्छा ये है कि समय बर्बाद करना है और कुछ फालतू कामों में हमारे समय को लगाना है, यही हमारी इच्छा है. And nowadays, so many young people are wasting a lot of time for the internet and social media, video games, and many even unclean things. और आजकल जवान लोगों को हम देखते हैं अपना बहुत सारा समय वो वीडियो गेम के लिए, इंटरनेट के लिए, सोशल मीडिया के लिए, सोशल मीडिया में बर्बाद कर देते हैं. And so the devil has got a hold of the time of their life. और इसलिए शैतान उनके जीवन का जो समय है उस पर वो अपना कब्जा बना लेता है. And the Lord wants us to redeem that time from the devil and the world and ourselves, so that we can use that time for the glory of the Lord. और इसलिए प्रभु हमसे चाहता है कि हम उस समय को छुड़ाएं, ताकि हम उस समय का इस्तेमाल प्रभु की महिमा के लिए कर सके. And we were seeing in the initial weeks and all, we were seeing the example of the tabernacle of the holy place, and connecting it to the cognitive triangle of my thought, emotion, and behaviors. हम जो मिलाप का तंबू है उसका उदाहरण हम आगे शुरुआती दिनों में हम देख रहे थे. And we saw that when we surrender our will to the Lord, the Holy Spirit will help us to change our thought, and the Holy Spirit will help us to change our behaviors also. तो हमने ये देखा कि जब हम अपने विचारों को परमेश्वर के अधीन कर देते हैं, तब पवित्र आत्मा हमें परिवर्तित करना शुरू कर देता है. The Holy Spirit will help us to renew our mind, and पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है कि हम हमारे मनों को फिर से ताजा कर लें, and to change our behaviors also. और उसके साथ साथ हमारे स्वभाव को भी हम बदल लें. And so we need to pay the price of our self-will to redeem the time from the clutches of our flesh and the self. और इसलिए हमें जो हमारी स्वार्थ की जो इच्छा है, स्वयं की जो इच्छा है, उसको त्यागना पड़ सकता है, उसका मोल चुकाना पड़ सकता है, ताकि हम समय का सदुपयोग कर सके और परमेश्वर के महिमा के लिए उसे इस्तेमाल कर सके. You need to tell the Lord Jesus, I surrender all my time, all the seconds, all the minutes, all the hours and days and years of my life, Lord. I surrender to you. I want to use everything for you, Lord Jesus. और हम प्रभु से कह सकते हैं, प्रभु मैं चाहता हूं मैं अपने जीवन का सारा समय मैं आपके हाथों में समर्पित कर दूं और आपके लिए उसे इस्तेमाल करूं. That doesn't mean that all the time we are reading the Bible. Don't misunderstand me. मेरी बात को गलत मत समझिएगा. मैं ये कहने का तात्पर्य नहीं रख रहा कि हमें हमेशा बाइबल पढ़ते रहना है. Even we saw Jesus sleeping and Jesus spending time with his disciples and all. So, I mean, we are normal human beings. We need to relax. We need to work. We need to do all the things as a normal human being. But everything we are doing in fellowship with the Lord Jesus for his glory. और हमें जैसे प्रभु यीशु मसीह खुद अपने चेलों के साथ संगति रखते थे और दूसरों से बात करते थे और ऐसे कामों में समय व्यतीत करते थे, हमें भी ऐसे कामों में समय व्यतीत करके भी हम परमेश्वर का महिमा कर सकते हैं. First Corinthians 10:31 says that whatever you do, whether you eat or drink, you do it for the glory of the Lord. और पहला कोरिन्थियों में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तुम जो कुछ करो,
चाहे तुम खाओ या पियो, सब परमेश्वर की महिमा के लिए करो। Eating and drinking are very ordinary behaviors that every day we do. और ऐसे कामों के द्वारा भी जो निरंतर हम हमारे दिनचर्या में करते हैं। Eating and drinking, every day we do that. और Yes, खाना और पीना वो हम रोज करते हैं। but even that, even the routine mundane behaviors, we do it for Jesus, so that whether we eat or drink, it is so that our body will be kept well to live His glory. और वो दिनचर्या का काम है, रोज करने वाला काम है, लेकिन उसके द्वारा भी हम खाते हैं पीते हैं ताकि हमारा शरीर तंदुरुस्त रह सके और उस तंदुरुस्ती के द्वारा हम परमेश्वर का महिमा कर सके। Yeah, so keeping our mind engaged productively, we saw. और हमने यहाँ देखा कि हमारा जो मन है उसको भले कामों में लगाकर अपने आप को उसमें व्यस्त रखना। So that means actually in the 24 hours, around 8 hours we sleep. और 24 घंटे में लगभग 8 घंटे हम विश्राम करते हैं, सोते हैं। And many hours we spend for studies or work. और उसमें से अधिक समय हम काम के लिए या पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। And in between the work and studies also we can take some short breaks. और उस काम के बीच में भी हम छोटा विराम ले सकते हैं। And even the rest of the time we need some time for food and daily routine and all. और उसके बीच का कुछ समय हमें दिनचर्या के काम को करने के लिए, खाना खाने के लिए भी उसके बीच का समय चले जाता है। And the rest of the time, for good hobbies, good friends. और बाकी काम कुछ शौक को पूरा करने के लिए, कुछ अच्छी आदतों को करने के लिए हम कर सकते हैं। And so like that, we need to keep our minds engaged productively. और ऐसे हम हमारे जो मन को अच्छे कामों में लगा सकते हैं। And as we already saw, we should spend time, by being engaged. All these things will come. Word and prayer and fellowship and witnessing, everything will come in that, being engaged in our mind. और भले कामों में व्यस्त रहने में ये बाइबल को पढ़ना, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, संगति करना, गवाही देना, ये सब कुछ उसी में ही शामिल है। And the next, some other more points is, one is ventilating our mind or writing a diary. और जो हम करते हैं उस पर पुनः विचार करना, या कुछ लोग जो दिनचर्या का जो उन्होंने काम किया है वो शाम को एक किताब में, एक डायरी में लिखते हैं, वो हम कर सकते हैं। Ventilation of the mind means, every room we built, there are some ventilation so that there would be free airflow. और वेंटिलेशन का मतलब ये होता है कि जब हम एक कमरा बनाते हैं वहां पर छोटी छोटी खिड़कियों को बनाते हैं ताकि जो हवा है वो उसमें से पार हो सके। So like that, our mind also needs some ventilation. That means we need to tell others what happened, and of course, especially if there is some stress or some problems that we are facing, we should tell the Lord, as well as we can tell people who are close to us that what we are undergoing, so that they can also help and pray with us and help us in whatever way. या वैसे ही हमारे जो दिमाग है उसको भी वेंटिलेशन की जरूरत है ताकि हमारे जीवन में जो बातें घट रही है वो हम दूसरों को बता सके, दूसरों से सुन सके, जान सके और अपने विचारों को दूसरों के सामने रख सके और अपने मन को हल्का कर सके। And some people have this good habit of writing diary. और कुछ लोगों का ये अच्छा आदत होता है कि वो अपने जीवन के विषय में लिखते हैं हर दिन क्या हुआ। Yeah, but some people may not be finding it practical, but whatever be that, if that is helping you, of course you can do that. That's all. कुछ लोगों को लगता है कि वो प्रायोगिक नहीं है। जैसे भी अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो अच्छा है, अगर आपको लगता है वो करना अच्छा है तो आप कर सकते हैं। So we already saw this point, sleep for 8 hours and the role of cytokines and all, we already saw. और हमने ये 8 घंटे के नींद के विषय में जो बात है वो हमने पढ़ चुके हैं, उसके बारे में हमने सुना है। And this point is forgiving others. और ये जो आखिरी पॉइंट है वो बताता है कि दूसरों को क्षमा करना। We know that from the Bible that because Jesus has forgiven us a lot, how much we should forgive others. बाइबल से हम ये बात जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्षमा किया है, तो हमें कितना दूसरों को क्षमा करना चाहिए।
But even from a medical perspective, forgiveness is good for our physical and mental health. और अगर आप स्वास्थ्य के विषय में भी देखें, उस नजरिए से भी आप देखें तो क्षमा करना हमारे शरीर के लिए, दिमाग के लिए काफी अच्छा है। Cortisol is one of our main stress hormones in our body. कॉर्टिसोल करके एक स्ट्रेस का शुक्राणु है जो हमारे शरीर में है। And if you do not forgive others, if you are bitter and stressed out, all the stress hormones will build up in your system. और अगर आप क्षमा नहीं करते या हमेशा क्रोधित रहते हैं तो ये जो हार्मोन है वो हमारे शरीर में बनते जाते हैं। And that will lead to decline of your own immunity. और ये अगर ये हार्मोन हमारे शरीर में बढ़ जाए, ये शुक्राणु अगर हमारे शरीर में बढ़ जाए तो हमारे रोग प्रतिरोध का जो शक्ति है उसको ये अपने आप कम कर देंगे। And you will get very easily. और हम बहुत जल्द आसानी से बीमार पड़ जाएंगे। Many a time, many of the physical illnesses are because of the stress and anxiety, forgiveness and all. और अधिकांश जो शारीरिक समस्याएं हैं वो हमारे मन का तनाव और चिंता के वजह से होता है। Not that all physical sicknesses are due to stress, but much good portion of the physical sicknesses that people are facing are because of stress. मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक जो शारीरिक समस्या है वो तनाव के वजह से होता है, बल्कि अधिकांश मैं कह सकता हूँ कि अधिकतर जो शारीरिक समस्याएं हैं वो हमारे तनाव के वजह से होते हैं। Many times, much of this headache and migraine and body pain and all can be due to stress. जैसे बहुत ज्यादा सर दर्द, शरीर में दर्द, माइग्रेन की बीमारी, ये अधिकांश बीमारियां जो है वो तनाव के वजह से हो सकती है। And one major cause for this stress is this unforgiving attitude. और इस तनाव का दिमाग में बनने का एक मूल कारण है क्षमा नहीं करना। And some types of arthritis and eczema, that is skin disease, and asthma, ulcer, all these can be due to stress. Some kinds, not all. और कुछ लोगों को वात की बीमारियां होती है, कुछ लोगों को छाले पड़ जाते हैं मुंह में या पेट में, और ऐसी जो बीमारियां हैं, किसी को अस्थमा होता है, ऐसी सारी हर प्रकार का अस्थमा नहीं बल्कि कुछ प्रकार की ऐसी बीमारियां हमारे मानसिक तनाव के वजह से होती है। So forgiving others and asking for forgiveness and everything will help us to have better physical and mental health also. और क्षमा करना या माफी मांगना ये सब हमें मानसिक रूप से स्वस्थ बनाता है। And we saw this cytokines and cortisol. So हमने साइटोकाइन के विषय में पढ़ा, हमने कॉर्टिसोल के विषय में पढ़ा। And there is another neurochemical in our brain, that is serotonin. और एक और जो तत्व है हमारे दिमाग में जिसको बोलते हैं सेरोटोनिन। And research has proved that when we appreciate others and help others, do some charity and help others and all, there will be more of this serotonin, which is one of our happy hormones. जो रिसर्च है उसने ये बताया है, ये साबित किया है कि जब हम किसी की सहायता करते हैं या हम जब किसी की वाहवाही करते हैं तो ये सेरोटोनिन नाम का तत्व जो है वो हमारे शरीर में ये बनता है। So when we greet others for their birthday, when we help others in some way that we can, so I mean, when we are connected to others, this happy hormones will increase in our body and we feel very relaxed and happy. जब हम किसी को विश करते हैं या किसी को बर्थडे का शुभकामनाएं जब हम देते हैं, जब हम किसी की सहायता करते हैं या हम जब कोई दान करते हैं, तब ये जो खुशी के जो तत्व हैं वो हमारे शरीर में बनते हैं। When we appreciate others for something, some good thing that somebody does, you can say thank you. That's good. You have done it well. So when we appreciate others and all, we ourselves become happier. और जब कोई कुछ अच्छा करता है, हम जब उसको शाबाशी देते हैं, कहते हैं भाई या बहन तुमने ये अच्छा किया, तो जो सुनने वाला है वो भी खुश होता है, उसके साथ साथ हम भी खुश होते हैं।
So one way to be happy is to make others happy. और खुश रहने का एक तरीका ये है कि हम दूसरों को खुश रखें. Yeah, and another neurochemical in our brain is called dopamine. और एक और जो तत्व है जो हमारे दिमाग में है जिसको हम डोपामिन कहते हैं. Dopamine is called the pleasure neurotransmitter. Pleasure. और जो डोपामिन है उसको प्लेजर या उसको मौज के लिए होने वाला जो तत्व है वो है डोपामिन. And nowadays, many of these youngsters indulge in many drugs and all, and they will have some dopamine high, but that are all very damaging to our brain and our life. और आजकल बहुत सारे जवान लोग हैं जो बहुत सारा नशा करते हैं और ये जब तो उनके जो शरीर है उसमें ये जो डोपामाइन है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए वो हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा हानिकारक है. There is some reward pathway in our brain. और हमारे जो दिमाग है उसमें बहुत ऐसे कुछ खाली जगह भी है. Reward pathway. I mean, I'm not sure whether I have that slide in this PowerPoint. There is a, even if you search in the net about reward pathway brain, you will get the image of that. Probably I wouldn't have included that in the slide. Probably next week I'll include that also. और मुझे पता नहीं, मैं उसके बारे में, what is the remote? Reward, REWARD, reward. Reward, okay. जो रिवॉर्ड पाथवे हम उसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसका जो इनाम या पुरस्कार का ऐसा एक तरीका है हमारे दिमाग में काम करने का, जो हमें आनंद देता है, जो हमें मजा देता है. So when that is when dopamine, this neurotransmitter, is secreted in our brain circuits in this reward pathway connecting many areas of the brain, we will feel very happy. और जब ये जो डोपामिन नाम का तत्व है ये जब हमारे दिमाग में चलता है और ये आनंद को बनाता है और हमें जो काम हम कर रहे हैं उससे काफी ज्यादा आनंद मिलता है, खुशी हमें मिलता है. The Lord wants us to experience that joy in His presence in its fullness. और परमेश्वर चाहता है कि हम जो आनंद है वो उसकी परिपूर्णता में और उसके सहभागिता में हम उस आनंद को महसूस करें. Psalm 16 verse 11 says that in your presence is a fullness of joy. और भजन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तेरे संगति में, तेरे सहभागिता में आनंद की भरपूरी है. So when we are in connection with the Lord and when we do things that the Lord wants us to do and when we think what the Lord wants us to think, we'll be happy. That is what. और जब हम इस बारे में सोचेंगे कि परमेश्वर हमारे लिए क्या करना चाहता है या परमेश्वर हमारे लिए क्या चाहता है और जो काम परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, तब हम और ज्यादा आनंदित होंगे उस बात को सोचकर. But people in the world, they seek after pleasures with wrong things. लेकिन जो संसारिक लोग हैं वो गलत बातों में आनंद को खोजते हैं. So I mean, this dopamine, when we have, as I already said about time schedule, and when we set some short targets like next half an hour, what all things I need to do, next one day or next week. So I set some short targets in my life depending on the Lord, and when I achieve that, I feel happy and satisfied. और जब हम हमारे जीवन में छोटे छोटे बातों को हम बनाते हैं या छोटे टारगेट्स को, छोटे कार्य को जब हम करना सुनिश्चित करते हैं तो हम उस आनंद को जल्दी महसूस कर सकते हैं. And all these good behaviors and all the good thought pattern we were discussing, all will improve the secretion of all these happy hormones in our system. और ये जो बातें हैं वो सब हमारे दिमाग में जो आनंद का जो तत्व है उसको छोड़ने में मदद करते हैं. And this another neurochemical in our brain is oxytocin. और एक और जो तत्व जो हमारे दिमाग में है उसको ऑक्सीटॉक्सिन कहते हैं. That is called love hormone or cuddle hormone. और उसको लव हार्मोन या प्रेम का जो हार्मोन है वो हम कहते हैं.
So when we are close with our friends and our family members and all, when we play with little children, and when we are close to our own good friends and family members and all, there will be more of this oxytocin release in our system. और जब हम हमारे दोस्तों के करीब होते हैं या परिवार वालों के करीब होते हैं, हम बहुत ज्यादा इस ऑक्सीटोसिन को हमारे अंदर महसूस कर पाते हैं. So that's why it's very important to spend good time with your family and with your good friends and good brothers in Christ. इसलिए परिवार के साथ समय बिताना, अच्छे दोस्तों के साथ समय बिताना, अच्छे लोगों के साथ समय बिताना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है. And another good behavior that we can inculcate is good physical exercise. और एक और स्वभाव को जो हम हमारे जीवन में शामिल कर सकते हैं, वो है शारीरिक अभ्यास या वर्जिश, हम जिसको बोलते हैं. Both aerobic and anaerobic exercises and all are good for our body. और जो दौड़कर या ऐसे करने वाला या उसके अलावा जो वर्जिश होता है, जो व्यायाम होता है, हम दोनों कर सकते हैं. We know walking or jogging or running or cycling, outdoor games, all those things, every day some 40 to 45 minutes, some good activity, and all those things will help us to stay fit. और हम सब जानते हैं कि जैसे चलना फिरना, साइकिल चलाना, दौड़ना, तैरना, ये सब बातें जब हम करते हैं, ये हमें स्वस्थ रखने में हमारी सहायता करती है. And all these physical exercises will help the release of some endorphin hormones, endorphin chemicals in our system, in our body. और जब एंडोर्फिन्स करके एक तत्व हमारे शरीर में होता है, जब हम व्यायाम करते हैं, ये तत्व हमारे शरीर में आ जाते हैं या बढ़ जाते हैं. So endorphins are also happy hormones like oxytocin and dopamine and serotonin, which we saw. और जो एंडोसिन है, वो भी इन ऑक्सीटोसिन या डोपामिन जैसे आनंद का या खुशी देने का एक तत्व है जो हमारे शरीर में है. It's why after some playing for some time, after doing some physical activity for some minutes, we feel very relaxed. और इसलिए जब हम व्यायाम करते हैं या कुछ शारीरिक अभ्यास करते हैं, तब हम आराम को या शांति हम हमारे जीवन में महसूस करते हैं. And if you do that, if you do the exercise in good sunlight, you will get vitamin D also. और जब हम धूप में रहते हैं या धूप को हम लेते हैं, तो विटामिन डी हमारे शरीर में हमें प्राप्त होता है. Vitamin D is good for mental health as well as for our physical health. और जो विटामिन डी है, वो हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए और हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी बढ़िया है. And it is very important for our immunity. और वो हमारे जो रोग प्रतिरोधक है, उसके लिए भी वो काफी अच्छा है. So that is the role of physical exercises. और इसलिए जो शारीरिक व्यायाम है, वो करना बहुत ज्यादा अच्छा है. Then a good diet, balanced diet. और एक संतुलित भोजन हमें खाना जरूरी है. More of fresh fruits and vegetables. और बहुत ज्यादा जो ताजे फल हैं या सब्जियां हैं, वो हमें खाना जरूरी है. And avoiding junk foods. और जो तेल और ऐसे जो खाना है, उसको कम करना अच्छा है. Minimizing fatty, oily foods and fried items and bakery foods and all to the minimum. और जो हमारे जो मोटापे को बढ़ाने वाले तेल भरे जो खाने हैं या बाहर का खाना है, उसको कम करना है. And moderate non-veg food and all for good. और जो साधारण हम जो मांसाहारी खाना कम खा सकते हैं. For good proteins, good non-vegetarian food, not preferably fried, but as curry and all, we can have good non-veg food as in the proper balance. हम मांसाहारी खाना भी खा सकते हैं, लेकिन अच्छी तरह पकाया हुआ, अच्छे साफ सुथरे तरीके से बनाया हुआ, लेकिन एक संतुलित मात्रा में, बहुत ज्यादा नहीं. And I was saying about changing the thought pattern.
then the behavior pattern, physical exercise, diet, and if needed, to stress management. If needed, sometimes some medicines, psychiatrist might prescribe. Some people would be so much stressed out and so much of sleep problem and so much of anxiety that even with all the rest of what we said, they're not able to become normal. Then some medicines would be needed if a good doctor prescribes that. कुछ लोग बहुत ज्यादा तनाव में आ जाते हैं, बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान व्याकुल हो जाते हैं। तो हमने जो बातों को यहाँ पर सीखा, वो करने के बावजूद भी वो उस तनाव से जब बाहर नहीं निकल पाते, तब उनके लिए कुछ दवाइयां हैं जो तनाव से उन्हें बाहर निकालने में मदद करती है। And next week, God willing, we hope I'd be able to finish all the classes by next week at least. और मैं आशा करता हूँ अगले सप्ताह तक मैं अपने सारे क्लासेस को खत्म कर पाऊंगा। Next week, God willing, we'll be seeing what are the misunderstanding about the psychiatric medicines and what are the symptoms of many mental health problems. और हम जो मनोविज्ञान है उसका जो उसके बारे में और ज्यादा हम पढ़ेंगे, और ज्यादा उसके दवाइयां कैसी है या उसका इलाज या वो कैसे हम पता लगा सकते हैं, उसके विषय में हम अगले बार ज्यादा पढ़ेंगे। We will see what are the major mental health disorders. और हम पढ़ेंगे कि और ज्यादा वो उसका जो रोग है वो कैसा होता है या उसका प्रक्रिया कैसी होती है, हम उसके बारे में पढ़ सकते हैं। So we hope we'll be able to complete all that next week, God willing. और मैं आशा करता हूँ उन सब बातों को हम अगले हफ्ते उन बातों को हम समझ सकते हैं। Now we'll close in prayer. और आइए हम प्रार्थना करके समाप्त करें। We will close our eyes. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Heavenly Father, for this blessed time. प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस आशीषित समय के लिए। And help us to understand and remember all that you have taught us, Lord Jesus. और प्रभु, आपने जो हमें सिखाया है, याद दिलाया है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। And help us to apply all that in our life as well as to help others also in future, Lord Jesus, with the information, with the knowledge that we have got. और जो हमने ज्ञान अभी प्राप्त किया है उसको भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए आप सहायता और मदद कीजिए। Thank you, Jesus. Thank you. और धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद। Jesus' name we pray. Amen. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। Amen. Thank you. Thank you. Thank you.